Dear students, last time we discussed about pedigree analysis. I explained you how to solve pedigree charts in minutes, as well as I explained you the process of pedigree analysis. Today we will be discussing about unit number 6, that is reproduction, and chapter number 1 out of this unit 6, that is reproduction in organisms. So this unit number 6 consists of total 4 chapters. The first one is reproduction in organism. The second includes reproduction in plants, then human reproduction, and number 4 will be reproductive health. This will be considered as the first unit of 12 NCERT syllabus, and of which we will be discussing the first chapter. So for suitability and understanding, I made total 2 videos. The first one is part 1 and the second is part 2. Today we will discuss about part 1. So overall this reproduction in organism, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़नी है. इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, and what is the exact process of sexual reproduction as well as asexual reproduction. So all basic information related to the reproduction is given in this chapter. हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं. पहले तो हमें ये समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. You will clearly see over here the sexual reproduction and the asexual reproduction, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट लगता है. सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर द डेफिनेशन इंडिकेट्स व्हेन 2 पेरेंट्स, आई मीन अपोजिट सेक्स, पार्टिसिपेट इन reproductive process, when 2 parents, that is opposite sex, participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, is called sexual reproduction. So here fusion is very important. So male gamete and female gamete दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, जो कि डिप्लॉयड होगा, और इस डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद उससे ऑर्गेनिज्म बनेगा और उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट. इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं भी है, बट एक बात जरूरी है कि देयर इज ओनली अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन इट. और यहाँ जो है, यहाँ 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड दैट टू बी अपोजिट सेक्स, आई मीन मेल एंड फीमेल. तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. एंड देयर आर इवन मोर डिफरेंसेस इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसको भी हम डिटेल में समझ लेंगे आज. If you observe here, apomixis and amphimixis, these 2 terminologies that are specifically and exclusively used for reproduction, where apomixis means asexual reproduction and amphimixis means sexual reproduction. So apomixis, that is without mixing, and amphimixis, that is both mixing. सो व्हाट काइंड ऑफ विदाउट मिक्सिंग एंड बोथ मिक्सिंग. विदाउट मिक्सिंग का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट मिक्स नहीं होंगे. जो कुछ भी प्रोसेस होगी दैट इज विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स. और एम्फीमिक्सिस में जो है दैट विल बी विथ मिक्सिंग. दैट्स व्हाई वी से एपोमिक्सिस इज नथिंग बट द मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction. So here you will clearly indicate apomixis, without mixing, it exactly works like sexual reproduction, but it is asexual reproduction. So we will be seeing the points. The first point of asexual reproduction is that it involves only one parent. As I already told you,
and here it involves two parents. Okay, so this is the basic difference. Point number 2, offsprings genetically identical to the parent. Now whatever the offsprings that will be developed through asexual reproduction, that will be genetically identical. सारे के सारे genetically identical होंगे, उनमें कोई भी difference नहीं होगा. All of the genes are the same, the sequences are the same, the if there is a plant, the production quantity, quality, that is also same. Okay, so that is very basic difference कि एपोमिक्सिस में मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे के सारे हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एम्फीमिक्सिस, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली सिमिलर हमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग नहीं मिलेंगे. पेरेंट्स आर डिफरेंट and offsprings are genetically different than the parents, and that is a peculiarity of sexual reproduction which involves heredity and variations. So some of the genes that will be transferred as it is from their parents to the offsprings, which we called it as hereditary characters, and some of the genes that get changed, a recessive or maybe a dominant allele may counteract in a offsprings which change its phenotype, and that makes it a variation. So हमें asexual reproduction में कोई भी प्रकार का वेरिएशन नहीं मिलेगा, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशंस मिलते हैं. Okay, so that's the second point. We will go to the third point. As you see, involves regular body cells. asexual reproduction के लिए कोई अलग स्पेशलाइज्ड सेल होना जरूरी नहीं है, but in sexual reproduction we need to develop sex cells. We may also call them as germ cells or the gametes. So it involves specialized sex cells. These cells undergo a process of meiosis, cell division, and forms haploid gametes. And these haploid gametes further join together to form the diploid zygote. And that is how sexual reproduction behaves in comparison with the asexual reproduction. So asexual reproduction में normal cell take part in the process of reproduction, whereas sexual reproduction में जो है specialized cells take part in the process of reproduction. अभी point number 4 में जाते हैं. More common in lower organisms and more common in higher organisms. Very simple. Asexual reproduction lower organisms में common है. You will observe algae, bryophytes in case of plants. In case of animals like the earlier phylums like Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, इन सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा दिखता है, बट हायर ऑर्गेनिजम्स में हमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा दिखेगा. द पॉइंट हियर इज वेरी मच क्लियर दैट टू परफॉर्म अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड अ हाई एनर्जी. We need to develop a high energy, and that is why organism, if it is of higher class, okay, it will produce higher amount of energy, and that makes them possible to do a process of sexual reproduction, which is not merely possible in case of asexual reproduction. So these are some of the basic differences what we have seen. एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस, इससे रिलेटेड नीट में हमें कई बार क्वेश्चंस होते हैं और आपको इस टर्म को अच्छे से समझना है. एपोमिक्सिस इज द मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब आपको लगेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, पर ये एक्चुअली है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? और एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है बोथ. एम्फी रिप्रेजेंट्स both mixing, where the mixing of male and the female gamete to form the zygote is the amphimixis, that is the way of sexual reproduction. So again there will be a question comes in our mind that which one is the better? You think the asexual reproduction is better, or you think the sexual reproduction better? And the question remains answered over here in the points given below, because every process has an advantages as well as disadvantages, and we have to understand these both. So it depends which one is better, but we will understand some of the points, that is advantages and disadvantages of both the things. Now look at here carefully.
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या कहते हैं। पहला पॉइंट, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल सेल्स एंड दैट्स व्हाई डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ज़्यादा एनर्जी भी लगनी नहीं है और कोई अलग प्रकार के सेल्स भी नहीं लगते हैं। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लॉट्स ऑफ वेरिएशंस विद इन अ स्पीशीज एंड दैट्स व्हाई यू नीड स्पेशल सेल्स as well as you need lot of energy to perform the meiosis in the special cells. Okay, point number 2, asexual reproduction can produce offsprings quickly. asexual reproduction से बहुत जल्दी offsprings बनते हैं, हालांकि उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, उनके लिए अलग स्पेशल सेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो क्विकली ऑफस्प्रिंग्स बनाती है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, दैट इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट इट क्रिएट्स लार्ज एंड थ्राइविंग पॉपुलेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट करता है इफ द एनवायरनमेंट इज स्टेबल। आई मीन टू से हियर इज दैट अगर कोई ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है फॉर देयर लिविंग, सच एज गुड टेम्परेचर, गुड हैबिटेट, ह्यूमिडिटी एंड ऑल द सूटेबल कंडीशंस फॉर सर्वाइवल, तो उस केस में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत फास्ट और बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। ओके, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखोगे कि इट एबल टू लिव इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल सेटिंग। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो ज़्यादा एडाप्टेशंस भी दिखाते हैं और वो अलग अलग एनवायरमेंटल सेटिंग्स पे रहते हैं। सो मानो कोई ऑर्गेनिज्म है जो लो एनवायरनमेंट, लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसे सर्वाइवल के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, तो उस हिसाब से उनमें जो है वेरिएशंस आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, एबल टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाएंगे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने ऑर्गेनिजम्स जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं। सो दैट इज द बेसिक थिंग्स एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिसएडवांटेजेस कुछ इस प्रकार से है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है लिमिटेड एबिलिटी टू अडेप्ट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा एडेप्टेशन नहीं दिखा सकते, वो ज़्यादा एडेप्टेशन नहीं दिखाते हैं। और पॉइंट नंबर 2, दे फेस मैसिव डाई ऑफ इफ एनवायरनमेंट चेंजेस। मानो जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब सूटेबल है फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा और थ्राइविंग पॉपुलेशन बढ़ाएगा। बट अगर वो एनवायरनमेंट चेंज होता है, वहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा या फिर अचानक से घटता है, तो उस समय वो सब के सब मारे जाएंगे बिकॉज दे आर ऑल सेम जेनेटिकली एंड दैट इज वाई दे फेस मैसिव डाई ऑफ इफ एनवायरनमेंट चेंजेस। तो उनकी वजह से उनको सारों को एक ही टाइम पे वो जो खतरा है वो महसूस होगा, क्योंकि वो सारे जेनेटिकली सेम है, उनमें वेरिएशंस ज़्यादा नहीं है। एंड दैट्स द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस में नीड्स टाइम एंड एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये प्रोसेस करने में और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है। So that's the disadvantages. And point number 2, that it produce small population. आपको इससे कम population मिलती है। Like if the environment is good, everything is better for the reproduction, तो asexual reproduction बहुत कम समय में ज़्यादा population बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा offsprings बनाएगा, पर sexual reproduction में वही offsprings कम quantity में बनेंगे और देर से बनेंगे, मतलब टाइम भी लगेगा और क्वांटिटी भी कम मिलेगी। यहाँ एसेक्सुअल में टाइम कम लगेगा और क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Okay, so that is why we say which one is better. It depends on the process and it depends on the situation. But overall, if you observe in overall scenario, that you will find sexual reproduction is more better than asexual reproduction. और उसके पीछे रीज़न ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, सॉरी,